ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। उनको मालूम है उनके पैसा को कैसे उपयोग करना है। Indeed. Now, the simplification of taxes has obviously going to increase the compliance, and it's also helped in the formalizing of the economy because a lot more people are, willing to participate. And you did mention a lot about that and about the formalization of the economy. The question is the informal sector. Is it, merging into the formal sector on a natural course, or do you need to draw them in? Are you giving some incentives to them to try and, formalize themselves? Yes, we are trying to make sure that people get onto the formal because of the incentives that we are giving for digital payments also. And when people put their account more on the formalized routine, we are also, like for instance, one of the announcements that we made today for MSMEs and professionals is that if your 95% operations are all formal, inclusive of check, not really necessarily digital, but even if it is check-based, into a banking system kind of thing and not cash, we are still giving you a higher level of, showing your claims. So then there are ways in which, this is one example, but there are very many other examples through which we are promoting the informal sector to gain from formalizing. So if they are small MSMEs, they take this ECGLS loan, they want it gives them better unsecured credit, they can come in. Once they come in, they're formalized. Right. The 59-minute loan giving, which happened through the digital format where people could convey to the bank that they wanted, and formally in principle 59 minutes you get the loan, and after that without visit into the bank you still get the bank assistance. These are ways in which we are formalizing. मैम, आज एक देश ने बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर देखी जब आप माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मिलने गई, और दो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो कहेंगे आज के दिन में देश ने देखा है। बजट भी महिला सशक्तिकरण पे फोकस करता है, जिसकी प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की। जब एसएचजीज के जरिए आप एक नया पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहते हैं, एक नया कल्चर लाना चाहते हैं, और आपने कहा कि अमृत काल में ये एक बहुत बड़ा हथियार होगा आपके पास ग्रोथ को ड्राइव करने का, आपके मन में क्या है और कैसे एम्पावरमेंट आप करने जा रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए ग्रोथ को कैसे आप टैकल कर रहे हैं? सिर्फ उदाहरण में रख रही हूँ, उदाहरण नहीं है, कंपैरिजन के लिए। स्टार्टअप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आए, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारी युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज़्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज़्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेज से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। If we look at the agriculture sector, the Agriculture Accelerator Fund for agri startups in rural areas, is this part of the larger focus in terms of, there are millets, there's also the 20 lakh agri credit, or, does it stand out for youngsters to look at some opportunities that are different, and if they are interested in the agriculture sector? I mean, you've talked about 4.0 and things like that, which I know youngsters are interested in, but there may be some who, might be not less so tech savvy. Where would they go? I mean, but actually tech savvy or not tech savvy,
both have equal opportunity when you're looking at the possibilities which can emerge from agriculture, fisheries, animal husbandry, and so on. Especially now, even through the cooperation we are bringing in panchayat levels, storage capacities, and a big scale. So in all this, technology plays a big role, and those who don't have technology or inclination for it can still be a part of this scheme of things, where they can find logistics, for instance, storage and the type of storage, value addition from the stored grains or the products. These are areas in which technology or no technology, immense possibility lies, and there is also a gap in that the possibility is got to be fixed in those areas where there is gap. Product is there, demand is there. If you only can bridge the gap through various different ways, supply networks, logistic networks, value addition to the grains, storage of the grains, preservation of grains, aggregating the grains which are produced, immense possibility. So that is where this accelerator fund will also come in. मैम अगर अब हम बात करें मैम आपके वित्तीय अनुशासन की, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जब पूरी दुनिया में सरकारें अपनी जनता के लिए खर्च कर रही हैं, आप वित्तीय अनुशासन दिखा रही हैं। ये आपने 6.4 का जो वायदा किया था, इस साल आपने स्टिक किया, अगली बार आप 5.9, उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ जो आपने पहले तय किया था 2025-26 के लिए, उस पर भी आप स्टिक कर रही हैं। ये वित्तीय अनुशासन कैसे आ रहा है मैम? मतलब मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, और फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए आपका क्या सिग्नल है इस बजट के जरिए या फिर इस फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए? ये कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंस, ये नहीं है कि बजट के समय आप इस डिपार्टमेंट को इतना दिए, उनके लिए इतना दिए और उनके लिए भी दे दिया, और रेवेन्यू रेसिंग में गैप्स है उसको फिलअप नहीं करते हो। दोनों तरफ जो रेवेन्यू गैप्स है उसको फिलअप करो, बंद करो, और एफिशिएंसी ले आओ। टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज हम ट्रेल कर सकते हैं कौन नहीं पे कर रहा, जो पे करने लायक उतने बारीकी से एक इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इफेक्ट हो रही। दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट्स को खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, क्या वो पूरे के पूरे उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही? एफिशिएंसी इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसा नीचे तक अगर नहीं पहुंचता, आपके मकसद जो है पैसा पहुंचने में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि फिनांस मिनिस्ट्री का काम एकदम बजट प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने ध्यान देना है उससे 3 गुना अधिक पूरे साल में इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल प्लग करने में, इवेशन रोकने में, और जहां लूप होल्स को उपयोग करते हुए पैसा कहीं और जा रहा उसको रोकने में, एक्शन लेने में, और जहां बार बार गलतियां हो रही है उनको उनके ऊपर एक्शन लेके उनके संपत्ति को लेने में कोर्ट के द्वारा। हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे के पूरे काम ऑन देयर टोस करना चाहिए।